ایلون مسک مستقبل میں الیکٹرک کاروں پر بڑی شرط لگا رہا ہے، لیکن ٹویوٹا نے ابھی ایک ایسا بم گرایا ہے جو چیزوں کو ہلا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک نئے انجن کا انکشاف کیا ہے جو الیکٹرک گاڑیوں کے اختتام کا جادو کر سکتا ہے جیسا کہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ ایک انجن جو قیاس کے مطابق پانی پر چلتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے، پانی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ جرات مندانہ دعویٰ ایلون مسک کے بقا خوابوں میں ایک رنج پھینکتا ہے، لیکن کیا واقعی کوئی گاڑی بغیر ایندھن بجلی کے صرف پانی کا استعمال کر کے گھوم سکتی ہے؟ اور کیا ٹویوٹا کا واٹر انجن واقعی الیکٹرک گاڑیوں کی مارکیٹ کو ختم کر سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ جڑے رہیں جب ہم کار ٹیک میں تازہ ترین کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اور ٹویوٹا کے گیم بدلنے والے واٹر انجن کے بارے میں سب کچھ کھولتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، اس سبسکرائب بٹن کو دبائیں تاکہ آپ بہترین ٹیک اپ ڈیٹ سے محروم نہ ہوں۔ پایان لائن میں صرف اور بھی بہتر کار بنانا چاہتا ہوں، چاہے ان کا پیٹرن کس قسم کا ہو۔ ٹویوٹا ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ کار کی دنیا کو ہلا کر رکھ رہا ہے، ایک گاڑی جو پانی پر چلتی ہے۔ اس کی تصویر بنائیں۔ الیکٹرولائسس نامی ایک سپر سمارٹ عمل کے ذریعے یہ ناقابل یقین گاڑی پانی کو ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تقسیم کرتی ہے، پھر اپنے انجن کو طاقت دینے کے لیے ہائیڈروجن کا استعمال کرتی ہے۔ جب ہائیڈروجن اور آکسیجن دوبارہ آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ کار کو زوم کرنے کے لیے توانائی چھوڑتے ہیں اور پانی کے بخارات کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتے۔ کوئی گندا دھواں نہیں، صرف صاف ہوا۔ یہ گیم چینجر گلوبل وارمنگ سے لڑنے اور آلودگی کو صاف کرنے میں مدد کر سکتا ہے، جس سے کرہ ارض پر ڈرائیونگ کا راستہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ٹویوٹا کا کہنا ہے کہ یہ ایجاد ایک صاف ستھرے سرسبز مستقبل کے لیے ان کا ٹکٹ ہے، جو کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے دنیا کے دباؤ کے عین مطابق ہے۔ یقینی طور پر الیکٹرک کاریں کچھ عرصے سے ماحول دوست چمک رہی ہیں، جو اپنے صفر اخراج اور قابل تجدید توانائی کے ساتھ چارج کرنے کی صلاحیت کے لیے پسند کرتی ہے۔ لیکن ٹویوٹا کی پانی سے چلنے والی کار میز پر بالکل نئی چیز لاتی ہے۔ الیکٹرک کاروں کے بکس جن کو بیٹریاں گرڈ میں پلگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ پانی پر چلتی ہے، جو ہمارے پاس کافی ہے۔ الیکٹرولائسس کی چال کو شمسی آہوا کی توانائی جیسی چیزوں سے بھی چلایا جا سکتا ہے، جو اسے انتہائی پائیدار بناتا ہے۔ اس کے علاوہ، جبکہ الیکٹرک کار کی بیٹریاں بنانا اور ٹاس کرنا ماحول کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، ٹویوٹا کی پانی سے چلنے والی سواری اس مسئلے کو مکمل طور پر چھوڑ دیتی ہے۔ ٹویوٹا کے بگ باس ہیروکی ناکاجاما کے مطابق، جو ایگزیکٹو نائب صدر اور ٹیک وزرڈ ہیں، یہ سفر کا مستقبل ہے۔ انہوں نے جاپان میں ایک حالیہ تقریب میں پھلیاں پھینکتے ہوئے کہا کہ ٹویوٹا اب صرف کاروں کے بارے میں نہیں ہے، وہ ایک متحرک کمپنی بننا چاہتے ہیں جو لوگوں کو گھومنے پھرنے کے بہت سارے ٹھنڈے طریقے فراہم کرتی ہے۔ ہیروکی سٹیج پر اکیلا نہیں تھا۔ اس نے ٹویوٹا کی الیکٹرک کار کے عملے کی قیادت کرنے والے شخص تاکاہیرو کاٹو اور ماتسوموٹو آموگاتا کے ساتھ مل کر کام کیا، جو ہائیڈروجن کار اسکواڈ کی قیادت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی نئی فیکٹری تیار ہو رہی ہے۔ ٹویوٹا کے پاس پہلے سے ہی ہائیڈروجن فیول سیل کاریں کام کر رہی ہیں، جو جہاز کے ٹینکوں سے ہائیڈروجن کو ہوا سے آکسیجن کے ساتھ ملا کر بجلی پیدا کرتی ہے، جو سواری کو طاقت دیتی ہے۔ ٹویوٹا کی پانی سے چلنے والی کار کے مرکز میں ایک ٹھنڈا گیجٹ ہے جسے الکٹرولائزر کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ذہانت پانی کو انتہائی مؤثر اور محفوظ طریقے سے ہائیڈروجن میں تبدیل کر کے جادو کر دیتی ہے۔ اسے ایک ٹن توانائی کی ضرورت نہیں ہے، اور بہترین حصہ، یہ کوئی گندی چیز نہیں نکالتا ہے، صرف پانی کے بخارات کو صاف کریں۔ ہائیڈروجن سے چلنے والی دوسری سواریوں کے بکس، اس کار کو ہائیڈروجن کو پکڑنے کے لیے کسی بڑے ٹینک کی ضرورت نہیں ہے۔ الکٹرولائزر گاڑی کو ضرورت پڑنے پر اسے ٹھیک کر دیتا ہے، چیزوں کو ہلکا اور ضبط رکھتا ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے اگرچہ گاڑی کے انجن کو تھوڑا سا تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ایندھن کے انجیکٹر، وہ چھوٹے اسپرے جو انجن میں ایندھن ڈالتے ہیں، کو ہائیڈروجن کو سنبھالنے کے لیے تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ انجن کے بلاک اور سلنڈر کے سر کو بھی بیف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہائیڈروجن کچھ شدید دباؤ سے جلتا ہے۔ یہاں تک کہ والوز اور اسپارک پلگ کو بھی ہر چیز کو آسانی سے اور محفوظ طریقے سے چلانے کے لیے ایک خاص اپ گریڈ ملتا ہے۔ ہم یہ سب کچھ بعد میں کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں سخت تفصیلات میں کھودیں گے، لیکن یہاں بڑی جیت ہے۔ ٹویوٹا کا پانی کا انجن دوسری ہائیڈروجن موٹروں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پانی کو ذخیرہ کرنا ہائیڈروجن کو ذخیرہ کرنے کے مقابلے میں ہوا کا جھونکا ہے۔ ہائیڈروجن ایک گیس ہے، اس لیے اسے بھاری مہنگے ٹینکوں کی ضرورت ہے جو زیادہ دباؤ کو سنبھال سکیں، اور وہ لیک ہو سکتے ہیں، جو بالکل محفوظ نہیں ہے۔
पानी दूसरी तरफ एक माए है। इसे जखीरा करना आसान है, इसे फैंसी टैंक की जरूरत नहीं है और उससे सर दर्द नहीं होगा। ये पानी के इंजन को छोटी कारों से लेकर बड़े ट्रकों यहाँ तक के पावर प्लांट्स तक हर चीज के लिए बेहतरीन बनाता है। इसकी सादगी और हिफाजत इसे दूसरे इंजनों पर बुतरी देती है। इसके अलावा ये हमें जीवाश्म ईंधन को खोदने और नुकसान दे आलूदगी को कम करने में मदद करता है। ये नक्लो हमल और तवानाई के लिए साफ सुथरा सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन यहाँ एक तफरीही मोड़ है। टोयोटा ने कहीं से ये ख्वाब नहीं देखा था। यकीन करें नहीं, पानी से चलने वाली गाड़ियों का ख्याल कुछ अरसे से आया है। टोयोटा कूदने से पहले दूसरों ने H2O2 पर कारें चलाने की कोशिश की। पता चलता है इस जंगली ख्याल की कुछ तारीख है। पानी से चलने वाली कारों के बारे में कुछ जंगली दावों से अपना दिमाग उड़ा देने के लिए तैयार हो जाएं। 2008 में जेनेसिस फैक्स नामी एक जापानी कंपनी ने सुर्खियां पकड़ी जब उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ऐसी कार बनाई है जो सादा पुराने पानी के लिए पेट्रोल और डीजल को खोदती है। गेम चेंजर के बारे में बात करें, सस्ता ईंधन और एक खुशकुन सैयारा। उन्होंने दावा किया कि उनकी कार ने पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तकसीम करने के लिए एक होशियार निजाम का इस्तेमाल किया, फिर उसके अर्द गिर्द जूम करने के लिए हाइड्रोजन को जला दिया। लेकिन यहाँ कैच है। माहिरीन ने इसे खोद कर पता चला कि कार सिर्फ पानी पर नहीं चल रही थी। इसे काम करने के लिए मेटल हाइड्राइड नामी एक खास जिज्व की जरूरत थी। लिहाजा सिर्फ पानी की हैरत नहीं जिसका उन्होंने वादा किया था। जेनेसिस फैक्ट्स, जिसकी क़ियादत जीना पैक ने की, ने कभी सख्त सबूत नहीं दिखाया और साइंसदान इसे नहीं खरीद रहे थे। उन्होंने निशानदेही की कि पानी इंतहाई मुस्तहकम है। इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तकसीम करने में 1 टन तवानाई दरकार होती है। तबीयत के मुताबिक आप मुफ्त में पानी से तवानाई नहीं निकाल सकते। ये चट्टान से रस निचोड़ने की कोशिश के मुतरादिफ है। ये पहला मौका नहीं था जब किसी ने इस ख्वाब को बेचने की कोशिश की हो। 1980 की दहाई में स्टेनले मेयर नामी एक आदमी ने किस्म खाई थी कि इसने एक टीले की छोटी छोटी गाड़ी बनाई है जो पानी पर चलती है। अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन इसने कभी साबित नहीं किया और 1996 में वो धोखाधड़ी के इल्जाम में पकड़ा गया। जीना पैक की कहानी काफी हद तक मेयर की तरह लगने लगी और लोगों ने अबू उठाए। इसके बाद 2002 में हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस नामी कंपनी ने दावा किया कि उनका गैजेट पावर कारों में पानी को तकसीम कर सकता है। उन्होंने वेल्डिंग से शुरुआत की, लेकिन जल्द ही कहा कि इससे गाड़ियां चल सकती है। साइंसदानों मुतासिर नहीं हुआ। कंपनी ने बाद में एतराफ किया कि इसने सिर्फ कारों को ज्यादा ईंधन की बचत की है, पानी से चलने वाली नहीं। इसी साल जेनेसिस वर्ल्ड एनर्जी ने एक ऐसे आले का वादा किया जो पानी से तवानाई हासिल कर सकता है। उन्होंने सरमायाकारों को नकद रकम देने पर राजी किया, लेकिन अंदाजा लगाएं क्या कभी कोई गाड़ी नजर नहीं आई। 2006 में उनके पास पैट्रिक किली धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल में उतरे। 2008 में इसी साल जीना पैक लहरें बना रही थी। श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाला एक लड़का जिसका नाम तोशिरा रियाल था, जो एक गुलकारा था, ये दावा करते हुए मंजर पर आ गया कि इसने सिर्फ 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हुए 190 मील तक कार चलाई है। ये जंगली है, ठीक है। हता कि श्रीलंका के वजीर आजम ने भी उनकी हिमायत की, लेकिन जोश बरकरार नहीं रहा। तोशिरा को धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और उसकी कहानी एक और ओवर हापिड फेब निकली। 2022 की तरफ तेजी से आगे बढ़ी और एक इंडोनेशियाई शख्स जिसका नाम आर्यनो मिकल है ने कहा कि इसने नाकबा नामी एक गैजेट इजाद किया है जो पानी को हाइड्रोजन ईंधन में बदल सकता है। इसने शेखी मारी कि ये सिर्फ 1 लीटर पानी पर 500 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चला सकती है और यहाँ तक कि लैम्बोर्गिनी और फेर्री जैसे बड़े नाम उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इंडोनेशिया के साइंसदानों के पास ये नहीं था। उनका कहना था कि इसने तबीयत के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। प्लस वो फैंसी कार कंपनियां असल में दिलचस्पी नहीं है। अरियानो की कहानी एक और बड़े वादे की तरह सुनाई देने लगी जिसका कोई सबूत नहीं था। इन तमाम फलापों और धोखाधड़ी के साथ ये आपको हैरत में डाल देता है। क्या कोई जानबूझकर पानी से चलने वाली कारों को खामोश करने की कोशिश कर रहा है? हम ये साबित नहीं कर सकते कि कोई बड़ी साजिश है, लेकिन कुछ रसीली वजूहात हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। शुरू करने वालों के लिए जीवाश्म ईंधन की सनत $1 ट्रिलियन की देव है।
पानी से चलने वाली कार उनकी दुनिया को उल्टा पलट सकती है, और उन बड़े खिलाड़ियों के पास नकद रकम और ताकत है कि वो किसी भी चीज को स्क्वाश करें जिससे उनके मुनाफा को खतरा हो। इसके बारे में सोचो। तेल कंपनियां मुश्किल से पीछे हट सकती हैं, शक फैला रही हैं या टेक के खिलाफ लॉबिंग कर सकती हैं जो उनकी स्पॉटलाइट चोरी कर सकती है। फिर रोजमर्रा के लोग और मीडिया है। इस तरह के नए ख्यालात सच होने के लिए बहुत अच्छे लग सकते हैं। और आइए ईमानदार बने। ईंधन के तौर पर पानी अपने सर को लपेटना मुश्किल है। लोग हिफाजत के बारे में फिक्रमंद हो सकते हैं या सिर्फ ये नहीं जानते कि ये कैसे काम करता है, जो खराब वॉब्स को जन्म दे सकता है और चीजों को सुस्त कर सकता है। तवानाई की दुनिया में बड़े शॉट्स उन खौफों को काबू में रखने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ये जंगली इजादात लपेट में रहें, चाहे ये छुपना हो या महज मुश्किल किस्मत। पानी से चलने वाली सवारियों का ख्वाब सड़कों पर रुकावटें डालता रहता है। इसका तसव्वुर करें। डरपोक गलत मालूमात की मुहिमें नई टेक के बारे में शक और खौफ को जन्म देती हैं, जिससे लोगों को जहाज पर कूदने में हिचकिचाहट महसूस होती है। लेकिन यहाँ आता है टोयोटा अपने पानी से चलने वाली कार के मंसूबों के साथ दिलेरी से कदम बढ़ा रहा है, और वो हकीकी साइंस के साथ इसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। कार की दुनिया में उनके बड़े असर और रसूख, लोगों की साख और वसाइल के खजाने के साथ टोयोटा शायद पानी की गाड़ियों को एक पागल अफवाह से बदलकर ऐसी चीज में बदल दे जो अब सड़क पर देखेंगे। हम एक नए दौर के दहाने पर पहुंच सकते हैं। टोयोटा ऐसा क्यों कर रहा है? वो एक ऐसी दुनिया में सरे-फहरिस्त रहने की दौड़ लगा रहे हैं जो क्लीन टेक और इलेक्ट्रिक कारों के बारे में है। चीन से बिड और जैसे नए खिलाड़ी इलेक्ट्रिक सवारियों को क्रैंक कर रहे हैं, टोयोटा को अपने खेल को बाप करने पर मजबूर कर रहे हैं। वो सैयारे के मुवाफिक सफर की मांग को बरकरार रखने के लिए अपनी हाइड्रोजन टेक को ज्यादा होशियार और सरसब्ज बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पीछे मुड़कर देखें, पानी से चलने वाली कार के आइडियाज की जंगली तारीख बहुत सारे दावे जाहिर करती है, लेकिन क्लीनर तवानाई के लिए ड्राइव, यही असल सौदा है। टोयोटा के पास पहले से ही एक हाइड्रोजन से चलने वाली कार है जिसे मीराई कहते हैं। ये साबित कर रहा है कि वो पायदार मुस्तकबिल के लिए संजीदा है, और मुझ पर भरोसा करें, रास्ते में मजीद दिलचस्प चीजें हैं। अब बक़े गाड़ियों में बड़े कुत्तों के बारे में बात करते हैं। चीन और अमेरिका पैक की क़ियादत कर रहे हैं। चीन ने एफ चार्जिंग स्टेशनों और फैक्ट्रियों में पैसा डालकर इसे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मार्केट बना दिया है। बिट और जैसी कंपनियां इस चार्ज को चला रही हैं। हुकूमती मुराद चार्जर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क और आला दर्जे की मैन्युफैक्चरिंग। चीन के रहनुमा आलूदगी और कार्बन के इखराज को कम करने के लिए पुरज़्म हैं, इसलिए उन्होंने सख्त कवानीन पर थप्पड़ मारा है जो एव्स को बड़ा फरोग देते हैं। हर साल लाखों इलेक्ट्रिक कारें उड़ रही हैं, और बेहतर बैटरियों और ज्यादा चार्जिंग स्पार्स पर उनकी तवज्जो उन्हें आलमी ईवी चैंपियंस के तौर पर गेम से आगे रखती है। रियासत-ए मुत्तहिदा में टेस्ला जैसे बड़े नाम बका गाड़ी एव मंजर को रोशन कर रहे हैं। एल्विन मस्क की क़ियादत में टेस्ला चीकना डिजाइन, सपर स्मार्ट टेक और सपर चार्जर्स कहलाने वाले फास्ट चार्जिंग स्टेशनों के एक बड़े नेटवर्क के साथ मुकम्मल गेम चेंजर है। वो बेहतर बैटरियों और तवील ड्राइविंग रेंज के साथ बार को मुसलसल ऊंचा कर रहे हैं। और ये सिर्फ टेस्ला ही नहीं है, जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसी क्लासिक कार कंपनियां भी कूद रही हैं, नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स तैयार कर रही हैं और एफ-टेक में बहुत सारे पैसे लगा रही हैं। लेकिन यहाँ बात है, अमेरिका और चीन दोनों अपनी एफ जीतने के बावजूद कुछ मुश्किल मसाइल से लड़ते हैं। बैटरियां बनाना और फेंकना माहौल के लिए मुश्किल हो सकता है, और उन्हें उन कारों को चार्ज करने के लिए साफ तवानाई की जरूरत है। ये वो जगह है जहां टोयोटा की पानी से चलने वाली कार एक नए मोड़ के साथ झपटती है। ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारों जैसी बड़ी लिथियम आयन बैटरियों पर इन्हिसार करने के बजाय, जिसे बेव्स कहा जाता है, टोयोटा कुछ मुख्तलिफ बना रहा है। पानी से चलने वाले हाइड्रोजन ईंधन के खलियात। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये बैटरी की पैदावार के माहौलियाती सरदर्द को दूर करता है और सिर्फ पानी के बुखारात को थोक कर चीजों को इंतहाई साफ रखता है। गैस से चलने वाली कारों से कोई गंदी आलूदगी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉग पैदा करने वाली चीजें नहीं। टोयोटा का पानी का इंजन जीवाश्म ईंधन की सवारियों के मुकाबले में ताज़ा हवा के सांस की तरह है, जो नुकसानदेह इखराज को खारिज करती है। इसके अलावा हाइड्रोजन ईंधन के खलियों में बाकायदा ईवी बैटरियों पर कुछ संगीन फवाइद होते हैं। एक तो हाइड्रोजन टैंक को भरने में सिर्फ चंद मिनट लगते हैं। बैटरी को चार्ज करने में जितने घंटे लग सकते हैं, इससे कहीं ज्यादा तेज।
یہ سڑک کے سفر کسی ایسے شخص کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے جو آس پاس انتظار کرنے سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے سب سے اوپر ہائیڈروجن لیتھیم آئن بیٹریوں کے مقابلے میں کم وزن میں زیادہ توانائی پیک کرتا ہے، لہٰذا آپ ایک ہی ٹینک پر زیادہ گاڑی چلا سکتے ہیں۔ اور یہاں سب سے اوپر چیری ہے، ہائیڈروجن کو سبز توانائی جیسے شمسی ہوا ہائیڈرو پاور کا استعمال کرتے ہوئے بنایا جا سکتا ہے، پورے سیٹ اپ کو مزید ماحول دوست بنانا۔ ٹویوٹا ہائیڈروجن کے ساتھ کام کرنے کے مشکل حصوں سے بھی نمٹ رہا ہے، جیسے اسے ذہانت سے بنانے اور ذخیرہ کرنے کا طریقہ۔ ان کی پانی سے چلنے والی کار کلینر کو کھولنے کی کلید ثابت ہو سکتی ہے، آس پاس جانے کے لیے زیادہ آسان مستقبل۔ انہوں نے انتہائی مؤثر الیکٹرولائسس یونٹ تیار کیے ہیں، فینسی گیجٹس جو کم توانائی کے ساتھ پانی کو ہائیڈروجن میں بدل دیتے ہیں۔ یہ یونٹ ہائی ٹیک کیٹلسٹس اور مواد کا استعمال کرتے ہوئے عمل کو تیز تر بناتے ہیں، جس سے ہائیڈروجن کی بڑے پیمانے پر پیداوار کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اور جب اس ہائیڈروجن کو ذخیرہ کرنے کی بات آتی ہے تو ٹویوٹا نے اسے ہلکے سخت ناخن والے ٹینکوں سے ڈھانپ دیا جو جدید مرکبات سے بنے ہیں۔ یہ ٹینک چیمپس کی طرح ہائی پریشر کو سنبھال سکتے ہیں اور شروع ہونے سے پہلے ہی لیک کو روکنے کے لیے اعلیٰ درجے کے سینسر اور حفاظتی چالوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ ہر چیز کو محفوظ رکھنا۔ سرد موسم کے بارے میں کیا؟ اگرچہ ہائیڈروجن انتہائی سرد حالات میں جم سکتی ہے جو گاڑی کو سست کر سکتی ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ٹویوٹا نے بھی اس کے بارے میں سوچا ہے۔ انہوں نے اپنے ہائیڈروجن اسٹوریج سسٹم میں ہوشیار حرارتی عناصر اور موصلیت کا اضافہ کیا ہے، اس لیے گاڑی باہر جمنے کے باوجود بھی گنگناتی رہتی ہے۔ اس سے ان کی ہائیڈروجن گاڑیاں ہر قسم کے موسم میں کارروائی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ٹویوٹا اپنی ہائیڈروجن بنانے کے لیے قابل تجدید توانائی جیسے شمسی ہوا اور ہائیڈرو پاور کا استعمال کر کے سبز ہونے کے بارے میں بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی پانی سے چلنے والی کار بمشکل پیچھے کاربن کا نشان چھوڑتی ہے، جو اسے وہاں کی صاف ترین سواریوں میں سے ایک بناتی ہے۔ لیکن ٹویوٹا کا ماحول دوست سفر صرف کل ہی شروع نہیں ہوا۔ وہ بسوں سے اس پر کام کر رہے ہیں، ہائبرڈ کاروں کے ساتھ چارج کی قیادت کر رہے ہیں اور متبادل ایندھن کی کھدائی کر رہے ہیں۔ ایک عمدہ چیز جس کی وہ تلاش کر رہے ہیں وہ ہے کلینر ہائیڈرو کاربن۔ عام طور پر ہائیڈرو کاربن گیسولین اور ڈیزل جیسے جیواشم ایندھن ہوتے ہیں جو ایک ٹن کاربن کے اخراج کو پمپ کرتے ہیں، لیکن ٹویوٹا مصنوعی ہائیڈرو کاربن اور بائیو ایندھن پر کام کر رہا ہے، سبز اختیارات جو کرہ ارض کو اتنا سخت نہیں مارتے۔ مصنوعی ہائیڈرو کاربن کاربن ڈائی آکسائیڈ اور ہائیڈروجن کو ایندھن میں ملا کر بنائے جاتے ہیں، بنیادی طور پر کاربن کی مجموعی گندگی کو کم کرنے کے لیے کو ری سائیکل کرتے ہیں۔ ٹویوٹا بائیو ایندھن پودوں، جانوروں کا فضلہ، طحالب اور دیگر نامیاتی اشیاء سے تیار کردہ ٹھنڈے ایندھن میں بھی کھدائی کر رہا ہے۔ یہ بائیو ایندھن قابل تجدید ہیں، یعنی ہم انہیں ختم کیے بغیر بناتے رہ سکتے ہیں، اور یہ کرہ ارض پر بہت زیادہ نرم ہے۔ ٹویوٹا یہ جاننے میں وقت اور محنت لگا رہا ہے کہ بائیو ایندھن کو کیسے بہتر بنایا جائے اور انہیں اپنی کاروں میں چھپایا جائے۔ یہ سب کچھ اخراج کو کم کرنے کے فوری طریقے تلاش کرنے کے بارے میں ہے، جبکہ دنیا مزید ہائیڈروجن اسٹیشن اور الیکٹرک چارجنگ اسپاٹس بناتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ٹویوٹا فیول سیل ٹیک میں بھی ایک سپر سٹار ہے۔ ان کے گرین کار پلان کے مرکز میں ہائیڈروجن فیول سیل ہیں جو ہائیڈروجن گیس کو آکسیجن کے ساتھ ملا کر بجلی میں بدل دیتے ہیں۔ صرف ایک چیز جو باہر آتی ہے، پانی کے بخارات۔ صفائی کے بارے میں بات کریں۔ ٹویوٹا نے 90 کی دہائی کے اوائل میں فیول سیل آئیڈیاز کے ساتھ کھیلنا شروع کیا تھا اور اس کے بعد سے وہ بہت طویل سفر طے کر چکے ہیں۔ آج ان کے ایندھن کے خلیے چھوٹے، ہوشیار اور سستے ہیں، جس کی بدولت مواد، سخت جھلیوں اور بہتر ڈیزائن میں ہوشیار اپ گریڈ ہیں۔ مزے کی حقیقت، ٹویوٹا نے اس سامان پر 5000 سے زیادہ پیٹنٹ حاصل کیے ہیں، جس میں فیول سیل ڈیزائن سے لے کر ہائیڈروجن اسٹوریج اور پروڈکشن ٹرکس تک سب کچھ شامل ہے۔ اس طرح وہ ماحول دوست ڈرائیونگ گیم میں ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر اپنی جگہ کو بند کر رہے ہیں۔ اور یہاں ان کی کہانی میں ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، میرائی۔ 2014 میں لانچ کی گئی میرائی، جس کا مطلب جاپانی میں مستقبل ہے، دنیا کی پہلی بڑے پیمانے پر تیار کی جانے والی ہائیڈروجن فیول سیل کار ہے۔ پائیدار سفر کے لیے یہ ٹویوٹا کا ایک بڑا خواب ہے جو ایک خوبصورت سواری میں سمیٹے ہوئے ہے۔ تب سے میرائی کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹویوٹا اس ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے میں سنجیدہ ہے۔
ये एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम पर चलता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली बनाता है, एक सीट अप के साथ जिसमें फ्यूल सेल स्टीक पावर बनाने वाला कोर, हाई प्रेशर हाइड्रोजन टैंक, एक बका मोटर और तवानाई को जखीरा करने के लिए बैटरी शामिल होती है। नतीजा, एक कार जो बिजली और पानी के बुखारात को पंप करती है और कुछ नहीं। मीराई के बारे में बेहतरीन चीजों में से एक, ये हाइड्रोजन के एक मुकम्मल टैंक पर बहुत लंबा फासला तय कर सकता है और इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने से कहीं ज्यादा तेज रफ्तारी से भरता है। मीराई एक हकीकी चैंपियन है। ये हाइड्रोजन के एक टैंक पर 300 मील से ज्यादा जिप कर सकता है, जो गैस से चलने वाली बहुत सी कारें कर सकती है। और यहाँ बेहतरीन हिस्सा है, इसमें ईंधन भरने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने से कहीं ज्यादा तेज है, जिससे मीराई को किसी भी ऐसे शख्स के लिए एक इंतहाई आसान इंतखाब बना दिया गया है जो बगैर किसी रफ्तार के सब्ज होना चाहता है। इसके अलावा ये सैयारे के लिए मुकम्मल जीत है। चूंकि ये सिर्फ पानी के बुखारात को बाहर निकालता है, इसलिए कोई गंदा रास्ता नहीं है जिससे हवा में खलल पड़ता है या ग्रीन हाउस गैसों में इजाफा होता है। टोयोटा मेरा को मजीद हाथों में लेने के लिए सख्त मेहनत कर रहा है। वो लागत को कम करने के लिए इसे कैसे बनाते हैं और कीमत को नीचे लाने के लिए इनमें से ज्यादा बनाते हैं। वो दूसरों के साथ मिलकर मजीद हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन भी बना रहे हैं ताकि ड्राइवरों को भरने के लिए जगह तलाश करने की जरूरत न पड़े। लेकिन टोयोटा मीराई पर नहीं रुक रहा है, वो हाइड्रोजन पावर को बसों और ट्रकों में भी ले जा रहे हैं। ये बड़े रगों से पता चलता है कि हाइड्रोजन कितनी वर्सेटाइल हो सकती है, जो शहर की आमदोरफ्त और हैवी ड्यूटी मुलाजमतों के लिए साफ मुअस्सर सवारियों की पेशकश करती है, कार्बन के इखराज को और भी कम करती है। और भी है, टोयोटा कारों से आगे का ख्वाब देख रहा है। वो हाइड्रोजन ईंधन के खलियात को जनरेटरों और इमारतों, डेटा सेंटर्स और दीगर मकामात के लिए तवानाई के निज़ाम जैसी चीज़ों को ताकत देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक काबिल एतमाद सब्ज तवानाई का जरिया है जो दिखाता है कि हाइड्रोजन का सड़क से आगे मुमकिना रास्ता है। टोयोटा का बड़ा तस्वीरी मंसूबा एक पायदार मुस्तकबिल की तामीर, बेहतरीन ईंधन के सीट अप के साथ शानदार गाड़ियों को मिलाने और तवानाई के साफ जराए के बारे में है। तो ये हाइड्रोजन जादू कैसे काम करता है? ये बहुत अच्छा है। टोयोटा की हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ियों के अंदर जैसे मीराई टैंक से हाइड्रोजन एक कीमियाई अमल में हुआ से ऑक्सीजन के साथ घुल मिल जाती है, जो गाड़ी को ताकत देने के लिए बिजली को तेज करती है। ये माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर गाड़ी चलाने का एक स्मार्ट साफ तरीका है। इस सीट अप में एक अहम खिलाड़ी एक गैजेट है जिसे अल्कट्रोलाइजर कहा जाता है, जो ये सब कुछ आसानी से होने में मदद करता है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक मुहे से बना हुआ पानी लेता है और बिजली का इस्तेमाल करते हुए इसे अलग करता है। ये 2 धाती टुकड़ों के साथ होता है जिन्हें पानी में डूबे हुए इलेक्ट्रोड कहते हैं। जब बिजली गुजरती है तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है। हाइड्रोजन मनफी इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है किथवुड और ऑक्सीजन मुस्बत इलेक्ट्रोड उनवुड की तरफ जाता है। ये महफूज, मुअस्सर और सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है, कोई गंदी चीज नहीं। हाइड्रोजन फिर कार के फ्यूल सेल को ताकत देता है, बिजली में बदल जाता है जो मोटर को चलाता है और पहियों को घुमाता है। पावर कंट्रोल यूनिट हर चीज को आसानी से चलता रखता है। फ्यूल सेल और बैटरी से जिप अल्फॉक्सलरेशन और स्मार्ट बैक लगाने के लिए बिजली का जादू लगाता है। फ्यूल सेल स्टीक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक खास रद्द अमल में मिलाता है जो बिजली पैदा करता है। बारास्त ऊपर डीसी पावर। कार की मोटर चलाने के लिए एक अनोरेट इसे एसी पावर में पलटता है। जब आप बैक लगाते हैं तो मोटर एक मनी जनरेटर में बदल जाती है जो सुस्त रवि से तवानाई हासिल करके इसे बैटरी में महफूज कर लेती है। ये चाल कारकर्दगी को बढ़ाती है और ड्राइविंग को और भी हमवार बनाती है। अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, ये कामिल नहीं है। पुराने निज़ाम सिर्फ 60 से 70% तवानाई को हाइड्रोजन में तब्दील करते हैं, बाकी को हरारत के तौर पर खो देते हैं। लेकिन नए मवाद, बेहतर अतप्रीरुक और कुछ होशियार तब्दीलियों की बदौलत जदीद सीट अप 80% इससे ज्यादा तक पहुंच गए। हाइड्रोजन के तैयार होने के बाद फ्यूल सेल इसे तकरीबन 50 से 60% कारकर्दगी पर बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। इन सब को एक साथ रखें और पानी से लेकर वहेल पावर तक सारा अमल तकरीबन 40 से 50% कारकर्दगी पर उतरता है। ये कम लग सकता है लेकिन यहाँ कुकर है। हाइड्रोजन एक बड़ा एनर्जी पंच पैक करता है जिससे टोयोटा जैसी ईंधन सेल कारें ज्यादातर बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों बेव से लंबी रेंज देती है।
और टोयोटा वहां नहीं रुक रहा है। उनके बड़े नारे के तहत चिल्लू कारों का मुस्तकबिल बदलते हैं। वो खुद को एक मुकम्मल आन मोबिलिटी कंपनी में तब्दील करने के लिए बहुत सारी नई टेक तैयार कर रहे हैं, न कि सिर्फ एक कार बनाने वाली कंपनी। टोयोटा ने हाइड्रोजन के लिए बड़े ख्वाब देखे हैं और वो सब कुछ हासिल कर रहे हैं। वो पेशीन गोई करते हैं कि 2030 तक यूरोप, चीन और शुमाली अमेरिका हाइड्रोजन गेम में सरफहरिस्त कुत्ते होंगे, जिसमें फ्यूल सेल मार्केट तकरीबन 5 ट्रिलियन येन तक पहुंच जाएगी। ये तकरीबन 5-7 बिलियन पाउंड सालाना है। इस पाई का एक बड़ा टुकड़ा हासिल करने के लिए टोयोटा कुछ दिलचस्प मंसूबे तैयार कर रहा है। जुलाई 2024 से वो ईंधन के खलियों के बारे में हर चीज को तेज और बेहतर बनाने के लिए एक चमकदार नई हाइड्रोजन फैक्ट्री खोल रहे हैं। ये जगह एक ही छत के नीचे तरक्की, पैदावार और फरोख्त को संभालेगी, लिहाजा फैसले जल्दी होते हैं और सब कुछ एक ख्वाब की तरह काम करता है। उनकी हिकमत अमली के 3 बड़े हिस्से हैं। सबसे पहले वो यूरोप और चीन जैसे अहम मकामात पर दुकान कायम कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को हर इलाके की ज़रूरत के मुताबिक बना रहे हैं। दूसरा, वो आला शराकतदारों के साथ मिलकर ईंधन के खलियात को सस्ता और हासिल करना आसान बना रहे हैं। तीसरा, वो अगली नस्ल के फ्यूल सेल टेक पर पैडल को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि इसे बेहतर और ज्यादा मुसाबकती बनाया जा सके। ईंधन के सेल स्टीक की लागत में 50% कमी और अगली नस्ल के निज़ाम की लागत को 37% तक कम करने के बारे में सोचें। अगर वो 2030 तक 2 लाख यूनिट्स के ऑर्डर छीन सकते हैं, तो टोयोटा का कहना है कि लागत में मजीद 50% कमी आ सकती है, जो सार्फिन और हुकूमतों को खुश रखते हुए ठोस मुनाफा में बंद कर सकती है। वो पैदावार, नकलो हमल और इस्तेमाल को हमवार करने के लिए शराकतदारों के साथ काम करके हाइड्रोजन बनाने के महंगे पहलू से भी निमट रहे हैं। एक अच्छा ख्याल, थाईलैंड में वो हाइड्रोजन को तेज करने के लिए चिकन की खाद और खाने के स्क्रैप को बायोगैस में तब्दील कर रहे हैं। तख्लीकी और सब्ज के बारे में बात करें, टोयोटा की मित्सुबिशी कोकेकी कारपोरेशन और टोयोटा सोशी कारपोरेशन के साथ मिलकर हाइड्रोजन को मजीद आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक नया वाटर अल्कट्रोलाइजर बनाया है। हाइड्रोजन बनाने के लिए मीराई से ट्रिक्स उधार लेकर और एक मल्टी टैंक सिस्टम डिजाइन किया है जो हर किस्म की गाड़ियों में फिट बैठता है, यहां तक कि पुरानी गाड़ियों को हाइड्रोजन पर चलाने के लिए तब्दील कर देता है। बड़े रगों के लिए टोयोटा हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों पर काम कर रहा है, अखराजात को कम करने के लिए टैंक के साइज को मियारी बना रहा है और माय हाइड्रोजन टैंकों की जांच कर रहा है। उन्होंने जापान में एक हाइड्रोजन इंजन कार भी तैयार की है, जिसे अवामी सड़कों के लिए लाइसेंस दिया गया है ताकि कार्बन न्यूट्रल ड्राइविंग में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा हाइड्रोजन को दुनिया भर में सस्ता और ज्यादा दस्तयाब बनाने के लिए टोयोटा की दूसरों के साथ शराकतदारी। जल्द ही कारें वाकई पानी पर चल सकती है। क्या ये इलेक्ट्रिक कारों का खात्मा होगा? हमें बताएं कि आप तबसरों में क्या सोचते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो देखें। आप इसे पसंद करेंगे।